or it has become a difficult task for us to remember or to recall and remember all the properties of each and every element individually. Okay. What I am trying to say is जब हमारे पास 10-15 एलिमेंट थे या मे बी 20 एलिमेंट्स थे, उनकी हर प्रॉपर्टीज को हम एक एक दो दो तीन तीन पेपर्स पे लिख करके रख सकते थे और उनको याद कर सकते थे, उनके रिएक्शंस वगैरह को रिकॉग्नाइज या मेमोराइज कर सकते थे। ठीक है, 10-12-15 चीजें याद करनी इज पॉसिबल टास्क, मैनुअली पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना मे बी 10-15 जस्ट पेजेस होंगे, उसमें चेंजेस होंगे एंड that is all. Now when the numbers started increasing very fastly or rapidly, we thought or we felt that we need to organize our elements. So the first task or foremost task of uh, this periodic properties chapter, or what we try to learn under this, is organize elements organize uh, elements according to their properties. Okay. Properties, and once we have done this organization, then to study variation of various properties variation के बदले to study gradual changes in various elements and properties of various elements. Gradual changes in properties of various elements. And factors responsible for them. Okay. So these are the two key things. Identifying first the properties which are going to change, then identifying the factors responsible for causing those changes, and foremost important aspect of this chapter is to organize the elements according to their properties. So organization of elements into a chart or any sort of forms is the first priority, so that the elements having similar properties can be studied together, और जो properties उनकी similar हैं उनको सबके लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं
वो हमको ध्यान रखना होगा। जैसे एक साथ अगर हमने 6 को ग्रुप कर लिया या 7 को ग्रुप कर लिया, तो ये 7 की कॉमन प्रॉपर्टीज कॉमन है, जो भी जितनी 10 12 15 जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज आई, सो बेसिकली इंडिविजुअली याद करने के बजाय अब ये जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, 7 अलग अलग एलिमेंट के ऐसे प्रॉपर्टीज आते, अलग अलग जगह पर ये प्लेस्ड होते हैं, वी वुड हैव टू एसोसिएट विथ इट 70 डिफरेंट प्रॉपर्टीज सातों के ऐड करें तो। नाउ ग्रेजुअल शिफ्टिंग या श्रिंकिंग को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, तो नाउ दीज 7 कैन बी प्लेस्ड टुगेदर, कॉमन प्रॉपर्टीज एक साथ लर्न कर ली, डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग रह के ध्यान कर लेते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज या लर्न कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो इन दैट वे इट हैज made our life easier. Now the very important, I mean the important point over here is this need for organization can be felt more importantly if we look at need for organization of elements, ठीक है। Need, why do we actually require the elements to be organized into such a table? This can be understood very well with the rising number of elements, ठीक है। In year 1800 we knew just about 31 elements, ठीक है। By the time we reached 1865, now 1865 is something which is landmark year. 1864 में 64-65 में there was a scientist named न्यूलैंड, ठीक है। उसने एक पीरियोडिक टेबल दिया था नेम्ड एज न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है। एंड उस समय उसके पास अवेलेबल एलिमेंट जो थे दे वर 63 इन नंबर, so elements, so in these 65 years we added up 32 different elements in our knowledge. Going forward, in year 2016 we discovered the last set of 4 elements and the number rose to 118. ठीक है, 2016 में ही ये आखिरी के 4 एलिमेंट जो थे उनको प्रॉपर नाम दे करके उनको टेबल के अंदर में हमने एस्टैब्लिश कर दिया। सो the span looks larger, but ठीक है, we have added around 55 more elements and the list is growing. The list is yet not static, it will keep on growing. Are we getting this point? Yes, sir. Yes, sir. So now studying the properties sir. of Yes, sir. the properties of all these elements separately is obviously, it would obviously have been in absence of this arrangement or organization of elements into a subtle framework, it would have been a difficult task. The presence of this organization has actually helped us to understand the properties of these elements in a much better way, much better way, ठीक है। Now obviously this organization of elements into a cluster did not happen in a day, ठीक है। It went on through stages, ठीक है। It went on through stages. Now stages का भी importance जो है, that can be very much related to the number of elements we used to know and the scientists who were, the mentality of scientists who were working towards it, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो सब्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन आया था, that was by Devonier, ठीक है। He
has given his Debonnaires triad in year 1829. ठीक है, 31 एलिमेंट्स थे 1829, मतलब 31 के बदले मान लो 40 एलिमेंट्स थे, और 9 एलिमेंट बढ़ गए होंगे 20 साल में, 30 साल में। और इसने डेबोनियर ट्रायड ने उस एरा में अप्रोक्सीमेटली 15 एलिमेंट्स का ट्रायड बना लिया था, 3-3 का पेयरिंग बनाया था। और इसका क्लेम ये था कि ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें पहले वाले का और तीसरे वाले के एटॉमिक मास का एवरेज ये मिडिल वाले का होगा, और वही नहीं, इनके प्रॉपर्टीज का भी एवरेज इस मिडिल वाले की प्रॉपर्टी होगी। रिएक्टिविटी की बात करें तो, और जनरल ट्रेंड, मतलब जिस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ये तीनों सिमिलर टाइप के कंपाउंड फॉर्म करेंगे। रिएक्टिविटी जो होगी वो मोर और लेस इनके बीच की होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी वो इन दोनों के बीच की होएगी, एंड प्रॉपर्टी जो होंगे, मतलब सॉरी, बिहेवियर जो होएगा, ट्रेंड, रिएक्शन किस किस तरह के करेगा, वो सारे एग्जैक्टली इनसे मैच करेगा। रेट क्या होएगा, किस रेट पर करेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। और कंपाउंड्स किस तरह के फॉर्म करेगा या रिएक्शंस किस तरह के करेगा, जिस तरह की ये रिएक्शंस करेंगे वैसा ही करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर 30 या 35 या 40 एलिमेंट मिल रहे हैं हमको, और कोई एक बंदा बैठ करके 15, 16 या 18 एलिमेंट्स को 4 या 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर पा रहा है ऐसे, तो लोगों को ये लग सकता है कि थोड़ी और मेहनत करी जाएगी, तो बाकी के भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइज हो जाए इसी तरीके से, एंड दिस कुड हैव बीन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दोज एरास। ठीक है, बट देन what people saw is the numbers are still increasing. लोगों को ये लगा कि अच्छा नंबर ये 40 में तो ये 15 सब्सटेंसिव लग रहे हैं, बट अगर ये 50-60 हो जाते हैं तो 15 might become a insubstantive number. नंबर 1। नंबर 2, 15 ही ऑर्गेनाइज हो पा रहे हैं। नंबर 2, are they actually able to organize rest of the remaining things into a triad format or not? The answer was not clear yes. ठीक है, it was kind of no, we are not able to. The third important thing is, are the new incoming elements जो भी नए elements मिल रहे हैं, क्या पुराने available elements में से किसी के साथ triad create कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, हर बार जैसे 10 नया एलिमेंट मिला, 31 के बाद 10 नए एलिमेंट या 20 नए एलिमेंट मिले हैं, और 31 वाले में 15 अगर हमारा बना हुआ है ट्रैड, तो अगर 15 और नए एलिमेंट मिलते हैं और 15 में से एक भी एलिमेंट कोई भी नया ट्रैड बनाने में हेल्प नहीं करता है, ग्रेजुअल इंक्रीज को शो करने में हेल्प नहीं करता है, तो वी कैन, लाइक, इफ नॉट विथ श्योरिटी, बट या देयर कम्स अ डाउट इन आवर माइंड कि आर वी डूइंग द राइट कैटेगराइजेशन। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? अगर आपने पहले से 5 ब्लॉक्स बना के रखे हैं और 15 नया एलिमेंट आया, और बाकी के 15 और पहले से थे, सो देयर आर 30 अनग्रुप्ड एलिमेंट्स व्हिच आर देयर, एंड 30 अनग्रुप्ड एलिमेंट में आप एक भी नया ट्रायड फिर से नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली अ फेलियर ऑफ, or at least it creates a big doubt on the methodology which this triad was using. Are we getting this point? Yes, sir. Okay. Triad के definitions and all वो मैं अलग से अभी लिखवाऊंगा. I'm just giving you a brief idea. Vis-a-vis this number. ये numbers जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे हमारी understanding भी बढ़ती गई, and we tried to
incorporate all those ये क्या बोलते हैं informations in building up our organizational chart of the elements and धीरे धीरे करके वो फाइनल स्टेज तक आया है, ठीक है। और 65 मैंने बताया ये वाला नंबर बेसिकली जो मिला है न्यूलैंड्स ऑक्टेव से में हमको मिला है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। दिस हैपेंड इन ईयर 1864। इसका ये था कि ये म्यूजिक से थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो करके सारे गामा पाधा नीसा सा से सा 1 to 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8th is repetition of 1, ऐसा इसका सोचना था। और इसने पूरे टेबल को 7 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया। तो इसने अपना एक टेबल बनाया जिसको कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बट इसने वर्टिकल ये कॉलम्स और ग्रुप्स को मतलब कॉलम्स को और हॉरिजॉन्टल रोज को कुछ नाम वाम नहीं दिया था, बस ऐसे ही बना के छोड़ दिया था, ठीक है। एंड या इसके टाइम पे अराउंड ये एक्चुअली 63 65 में थे, ये 64 में या जब कर रहा था तो इसके पास एग्जैक्टली 56 एलिमेंट्स थे, ठीक है। न्यूलैंड के पास 56 एलिमेंट थे जब ये ड्रॉ कर रहा था। ये इसका फाइनल वर्जन आया था 1864 में, 4-5 साल पहले काम कर रहा था। उस समय 56 एलिमेंट्स थे और उसने उनको 8 रोज में 8 रोज में अरेंज कर रखा था, ठीक है। और सॉरी 8 नहीं 7 रोज में आई थिंक अरेंज कर रखा था। और 7 रोज में ऐसा था हिसाब किताब कि कहीं कहीं पर इसने जबरदस्ती भी किया था, जबरदस्ती एज एन और एक ही रो एक ही कॉलम में एक से ज्यादा एलिमेंट को ठूस दिया था, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में किसको किसको रखा था, एक नीचे में जैसे एक सेकेंड रुक जाओ, I'll show it to you. Newlands octave table. सर 1865 में फाउंड किया था ना? 1864 था रिसर्च पीरियड। 5 है क्या? हाँ सर। अरे ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा ये ईयर्स का सी इन ईयर्स का कुछ मतलब नहीं है, ये ईयर सिर्फ टाइमलाइन के लिए है आपके, प्रिसीजन जितना हो सकता है उतना करते हैं, बट द ईयर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे साइंस के स्टडीज में ईयर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, लॉजिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपसे एग्जाम्स में ये नहीं कभी पूछा जाने वाला है कि किस ईयर में ये हुआ हाँ, बट हम टाइमलाइन बेसिकली इसलिए देखते हैं एक रिलेटिव आइडिया के लिए कि पहले 100 साल में हमने क्या किया इम्प्रूवमेंट साइंस के अंदर, हाउ फास्ट द साइंस इज चेंजिंग, ये हमको आइडिया इसी से लगता है। सर कोबाल्ट और निकल को साथ में प्रेजेंट किया था ना? हाँ हाँ यार कोबाल्ट और निकल दिखा रहा को हूँ न्यूलैंड। वहीं ला रहा हूँ। सो नॉट ओनली कोबाल्ट एंड निकल, और भी जगह पे किया था। आई एम ट्राइंग टू पुल दैट ऑफ।
आ गया। सर सीरियम और लैथिनम। हम्म, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, और ये याद रखने की चीज नहीं है, डोंट वरी। ये सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, याद रखने की यहाँ पे चीजें जो है वो अभी 15-20 मिनट के बाद चालू होंगी, ठीक है। सो नॉट टू गेट डिस्टर्ब एज ऑफ नाउ, अभी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर कहानी सुन लो। एंड इट्स नॉट प्योरली कहानी, बट इट विल मेक अस अंडरस्टैंड। सो इसने ये प्रॉब्लम्स करी थी, एंड ये प्रॉब्लम्स ही सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं थी, देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। सो एक जगह नहीं है, इट इज एट मेनी प्लेसेस ही हैज पुट इन। कितने हैं यहाँ पे? अच्छा, सारे 63 थे क्या था? 1 2 3 4 5 6, हाँ लगभग हैं। 62 एलिमेंट्स हैं इसके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 56, 62 एलिमेंट्स है न्यूलैंड के पास। 62 को अरेंज किया है, नॉट 56। I was wrong. ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, और कहीं पे डबल नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ किया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो ठीक है, लेकिन इसमें ये जो 3 मेंबर्स आ रहे हैं, कोबाल्ट, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम और एंड इरिडियम, ठीक है, ये तीनों का इनकी प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन का फिर भी फ्लोरीन, क्लोरीन की प्रॉपर्टी से थोड़ा मोड़ा लेना देना है, बट कोबाल्ट, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम और इरिडियम का इनके प्रॉपर्टीज से, ये जो हैं इनकी प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। नाउ ऐसे लोगों को साथ में अगर हमने रख दिया तो इट इज अ डिजास्टर्स वर्क, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही सेम नहीं है। और हमारा ऑर्गेनाइज करने का क्राइटेरिया क्या है कि वी आर ट्राइंग टू हैव अ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, उसी के हिसाब से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फॉर्मेट डेवलप करता है जिसमें दो बिल्कुल ही अपोजिट कैरेक्टर वाले लोग एक साथ क्लब हो, दैट बिकम्स व्हाट? हाईली इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये वाला ग्रुप थोड़ा सा बेटर था, मतलब ग्रुप वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इसने ग्रुप वर्ड नहीं यूज किया था। ग्रुप वर्ड पहली बार मेंडलीव ने यूज किया था अपने पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप एंड पीरियड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फाइन, रुबीडियम, सीजियम फाइन। बट यहाँ पर भी बीच में ये 3 एलिमेंट्स जो हैं, these 3 elements, these are out of the box, ठीक है। सिमिलरली हर पीरियड में देयर वेर सम जिंक, कैडमियम, लेड, यहाँ पे 5, बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, येट्रियम, सेरियम, लैथिनियम, यूरेनियम, थोरियम, कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इंडियम, जिरकोनियम, सर टिन, टंगस्टन, Hg। हाँ बोलिए ना, इंडम शायद रहेगा, हाँ बोलो ना, कुछ बोल रहे हो क्या? सर एक एलिमेंट रिपीट हुआ है। कौन सा? सर सेकंड ग्रुप में सेकंड लास्ट, हाँ, और लास्ट ग्रुप में लास्ट। ऑक्सीजन वाले में सीजियम को डाला है, नहीं सीजियम नहीं होगा, एक सेकंड देखने दो इसको। सीरियम हो सकता है, सीरियम को तो ऊपर लिया है।
ठीक है, हो सकता है इन्होंने जो चार्ट बनाया होगा ना उसमें इन्होंने गलती करी होगी, एक दूसरे चार्ट में भी देख लेते हैं। मैंने बनाया थोड़ी है कहीं और से ही ले रहा हूँ ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक सेकेंड रुको एक और बेटर चार्ट मिला। Place this one. This is better. इसमें भी देख लेते हैं क्या है। Yes, this is Mr. Newland with his periodic table. अभी हमारा प्रॉब्लम क्या था, ऑक्सीजन के लास्ट में है थोरियम, ठीक है, और सीजियम का पोजीशन यही वाला सही है, ये वाला गलत है। और थर्ड फोर्थ में टी एंड टीएल है, इट्स टीएल एंड यहाँ पर टीएच है, तो ये गलत, इनकी गलती है, दिस इज रॉन्ग, नॉट न्यूलैंड, ठीक है। हेलो यस सर। एक सेकेंड ठहर जाओ, मैं इनको उड़ा दूं, ये वाले को रिटेन करो, ठीक है। और सर लास्ट ईयर बताया था कि इन्होंने 66 में खोज की थी, 1866। अरे 66 में करें या 64 में करें, उससे क्या फर्क पड़ता है तुमको? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको कोई याद भी नहीं करता है, इनफैक्ट इनको पढ़ाना भी नहीं था, पढ़ाना नहीं होता है, इनसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। ये सिर्फ थ्योरी बताने के लिए टीचर्स के इंटरेस्ट की चीज होती है, मजा आता है लोगों को स्टोरी कहने में, मुझे भी मजा आ रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अदरवाइज योर study of periodic properties will start directly from modern periodic law, Mosley's law, ठीक है, यहीं से कुछ भी आना है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट द ईयर, 66 में करें 65 में करें या 2-4 साल और पहले करने, ये ना तो 65 में किया है, ना 64 में किया, ना 66 में किया है, इन्होंने किया और पहले होगा 1860 के अराउंड में इन्होंने कर लिया होगा अपना काम। हर पेपर को पब्लिश होने और वर्क को रिकॉग्नाइज होने में इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 years, ठीक है। तो इन्होंने किया 1860 और 62 के बीच में रहेगा, तो बट पेपर जो है वो फाइनल पब्लिशिंग के लिए जाता है आफ्टर 3 to 4 years, once it has been approved, criticized and counter questioned by rest of the science fraternity। अगर तुम कुछ भी करोगे तो तुम अचानक से पब्लिश नहीं कर दोगे उसको, तुम कुछ भी काम करते हो ना, उस काम को पहले, सबसे पहले तो किसी के अंडर में करना होता। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केम टू अस
Yes. Hello. Sorry. Hello, sir. Mendeleev periodic table का the basis of his distribution was he considered atomic masses to be fundamental properties. ठीक है? And secondly, he clubbed all the elements with the help of the oxides and hydrides they were forming. ठीक है, जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ उनके कंपाउंड्स थे उसके बेसिस पर और इन सारे एलिमेंट्स को उसने क्लब किया, यानी प्रॉपर्टी जो थी उनको इसी तरीके से क्लब किया था. ठीक है, या इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन एलिमेंट्स को क्लब किया था. एंड मोर और लेस हिज क्लबिंग्स हैज बीन गुड. अच्छा, ये वाला एक किसी भी ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ए एंड बी. दिस थिंग वाज आल्सो टैकल्ड, दिस थिंग वाज आल्सो टेकन इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले जो उसका फॉर्मेट था उसमें इट वाज डिवाइडेड इनटू 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B एंड 6A 6B 7A 7B 8 में ए बी करके कुछ नहीं था, उसमें बस ए ही था. ठीक है, 7 तक में ए बी था और एक ग्रुप जो था हमारा वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड ग्रुप था. ठीक है, बाद में हम लोगों ने वो ए बी नोमेनक्लेचर को हटाया और शुरू से लेकर के आखिरी तक को 1 से लेकर के 18 तक की नंबरिंग दे दी. ठीक है, बट दैट हैपेंड लेटर ऑन. पहले इट यूज्ड टू बी 1A 1B और हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों ही फॉर्मेट्स में देखने को मिल जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से, आर यू एबल टू सी द हेडिंग्स? Yes, sir. तो यहाँ पर these two are A, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A. ठीक है, और ये 8A. B वाले यहाँ पर 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B और ये 8B. ठीक है, 8A, ये तीनों 8B में आते हैं क्योंकि अच्छा अब ये B और A का क्या फंडा है वो थोड़ा सा समझ लो. मतलब एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जब हमने डिवाइड किया इनको तो इन एलिमेंट्स की वैलेंसी जो होती है ये लगभग 3 आती है.
इनकी वैलेंसी काफी सारे कंपाउंड्स में 4 की रहती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी रहेगी। इनका 5 का रहता है, 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट याद है क्या था? मैंगनीज का क्या था? ठीक है। और ये 8th वाले जो हैं इनका लिटरली वेरिएबल होता है, ये दो अलग अलग स्टेट्स में 2 एंड 3, ये 1 एंड 2, निकल का भी 2 एंड 3 है। और ये सारे लगभग उस तरीके से रहते हैं। 1b, ये 1 जनरली शो करते हैं सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये तीनों जो है ये 1 1 शो करते हैं। कॉपर एक्सेप्शनली 2 शो करता है, और गोल्ड जो है वो अलग से एक 3 का स्टेट भी शो करता है। ठीक है, 2 नहीं शो करता है। सिल्वर सिर्फ 1 शो करता है हर कंपाउंड में, इट नेवर शोज 2 और 3। बट कॉपर जो है अपने कुछ कंपाउंड्स में 2 भी शो करता है, और ये गोल्ड जो है वो अपने कुछ कंपाउंड्स में 3 शो करता है। क्या हुआ? हाँ, पेट। ओके, एक मिनट। You want to go to? ठीक है। सो बेसिकली ए बी जो हमने रिटेन करा है दैट हैज केम फ्रॉम ये मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। फाइन। नाउ लेट मी वॉक थ्रू, आई मीन जो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो थोड़े थोड़े से मुझे लिखवा लेने दो सारे के। सो द you can take a heading like evolution of periodic table. ठीक है। First important evolutionary step was obviously Debonnier triad. The rule he followed was, the thumb rule was, grouping elements in set of 3 such that uh, set of 3 elements in increasing atomic masses such that atomic mass of central atom was average of other two. We had 5 such. He was able to create 5 such
ट्रायड्स, ठीक है। 5 ट्रायड्स जो थे दे आर एक सेकेंड यार, लेट मी जस्ट चेक। स्पेलिंग हो सकता है मेरा गलत हो, स्पेलिंग मेरा गलत हो सकता है। आई नेवर गारंटी माई स्पेलिंग्स, लेट मी जस्ट चेक।